think few days, a week ago, it was 20,000 cases in a day, and now it is touching 24, 25,000. So I don't know. Probably we are getting into a time where probably we'll see that COVID as an integral part of our life, and that we just have to live it Yeah, alongside. that's the only choice. That's the only choice. The way it happens in case of dengue or for that matter normal flu, you have to just take it as it goes because there is no remedy to that problem in a larger sense. Yeah. Other part of country, obviously, for us, we continue to do work from home, but obviously, sales team is going out in the field as the need be to interact with the client, as the comfort of client is, and obviously to Picaro. So that movement has started. Obviously, that movement is very restricted in city like Bombay for that matter. But yeah, North is at least fairly sorted in that sense. So UP, MP, Rajasthan, Punjab, even some part of Delhi is okay. So people are moving out. West also, Gujarat, some part of it is okay. So yeah, so that movement has started happening. Mm. So we are just expecting it to quickly come back to normal. That as a radio operator, our lives are largely dependent on what is happening with others, and Mm. that's why it becomes too sensitive for us to see. But yeah, so we are just being slightly hopeful after June actually passed. It was slightly far better for us in that sense. No. Bombay, I think so. From 1st September, it will be little normal. 15 Yes, अगस्त तक कुछ 15 अगस्त तक कुछ नहीं होने वाला है. नहीं होने वाला. तो 1st September, so we need to prepare for that, you know. Yeah, सबसे ज्यादा तकलीफ मेंटली है. मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी mentally है. है. Yes, yes, mentally है. Actually. क्या होता है And not meeting people also a big challenge, you know. People yeah, smile तकलीफ होता है. yeah, absolutely. It's difficult thing actually. And also, I think dynamically is because Bombay is dynamically very, very different. Geographically, it is differently placed. The commuting time, distance is quite large. So, in that sense, obviously, the challenges in Bombay are very, very different than challenges of other big cities for that matter. And so, yeah, I think this random lockdown, which UP actually announced yesterday, 3 days, yeah. I think I think it's a beginning of this random lockdown probably happening in across different geography of country because that's the only option. Once you see the spike, obviously, then you do 2-3 days. Pause. You take 2-3 day pause, and again, then you start resuming. Um, so UP is starting with that because UP so far was controlled, but again the number of cases have gone up significantly in last 7-8 days. So just trying to see that whether it will control. Probably 3 days to begin. Probably they will extend it a bit. Yeah, but in that last 3 days because otherwise commercial activities will be hampered because the shops cannot open. The essential continue to be there. So yeah, it's a mixed Yeah. bag. I'm hoping that Bangalore and Hyderabad will be in a lockdown. Hyderabad Yes, बहुत खराब है. yes, yes, yes. Hyderabad is not declaring, but I got some Mm. connections whereby it's in very bad shape. And I think strangely, I think it happened with Bangalore because Bangalore, the early part of lockdown was so good for Bangalore actually, and one was hoping that Bangalore would be a model city Case in that. study, case study, case study. Yeah, and unfortunately, all of a sudden, actually things changed actually, and now they are contemplating. So yeah, very difficult to determine and difficult to actually gauge. And obviously, I think that's a larger consciousness about taking precautions, and you're also responsible for other lives. Large part of it, I see that thing happening in society, but yeah, some people continue to be slightly casual about it. That also needs to be because anyway, these things are not going to end in 5-10 days or months or so. It's not deadline driven anyway. So you have to take it alongside that. Yeah, let's go ahead. Let's see how things at your end in terms of
your distribution side of it, the response from tertiary sale. How have been things after at least unlock one happened? Yes, good. What happened, the rural area is doing well. और हमारे बिजनेस में क्या होता है कि सब प्राइस ड्रिवन होते हैं, कॉपर के प्राइस काफी बढ़ गए ना, और प्लस क्या है कि पाइपलाइन में माल नहीं था, Yeah, और प्लस एसएमई के पास माल नहीं है, तो सबसे yeah, एक अपॉर्चुनिटी मिला है. तो yeah. जून वाज प्रीटी गुड, and since Okay, we are the largest cable exporter from India, so we got that pipeline is very good. We have always forever. So risk okay, management is very different altogether. So we are pan India divided globally also, not only just in continent. So we are there all over. So some plus minus, some plus minus. So our average sales never goes down by 10 to 12% or never up by 10 to 12%. So it's like that average we are maintaining. So that and we got very early open permission because we made some okay, cable for ventilator. So that we got okay. so based on ventilator supplies, we got an early opening. Okay. I think so. Time is up now. And the export side of it, you're getting some sense on that side. The demand will continue to be the way it was earlier, or there is some. No, it depends on country to country. Like, see, UK is on lockdown, so now it's open on 5th July. For Yeah, unfortunately, yeah. our two distributors based in London only, their warehouse and Okay, everything, okay. and one got outside. So outside was doing well, the inside were not doing well. So it's a everything is not only on country based on location to location. Location to location. Yeah. Big challenge, and it's a yellow, green, red zone. We are monitoring every day. We have a team of setup. We got to hire E&Y to monitor for us. So it's based on Oh, that we plan our sales plan, collection plan, demand planning. It's a big challenge. A lot of work has increased. this, Result will come later on, but a lot of work has increased. So it's now we have to work intelligently. yeah. Hmm. Sailesh, how's your end in terms of the advertising? What's happening over there? So April and May were difficult for us, very very difficult in terms. And most of radio operators were down by 80%, 75-80% business. June was better for us, actually, most of us, and for us also, it is the best month in quarter one. So we are seeing sign of revival, especially some smaller towns actually are giving us growth, and most of the retail advertising actually is taking away shape. The regional corporate actually, and obviously I think it depends on industry to industry. So some industries which have started seeing the traction again, the market are coming back. So June was better, and July obviously so far it has been very very good actually. So we hope that July probably will be at least say 60% of our pre-COVID levels, and probably things will move further in future months. So yeah, that's what's happening. So first 2 months were very very difficult because of a virtual lockdown. But yeah, June actually has given us that confidence that yeah, things are getting back to normal. Very good Thanks. morning, Biggies, and good morning, Mr. Kaba. Good morning, Shishir. Good morning, Tarun, the entire RR Kabil team. Uh, Let me begin by saying that today is a very very special day for us, and obviously last day of a week. So we thought of giving you some perspective, probably which you can introspect and actually ponder over weekend. And that is why we have a story which is not only Indian story. You all know that we have been focusing on great Indian stories in last 30 to 45 days. But today we have one story which is not only Indian, which is truly global story coming out of India. And that's why we all should feel real proud of the story which we are going to talk about, which is RR Kabil, the leading cable and wire manufacturer. This story is so mammoth that it just happened 30 years actually per se, and the kind of numbers they have today and the kind of brand they have built over the period of time is truly mesmerizing actually for most of
Indian entrepreneurs. It's a very, very inspiring story. It is a story so inspiring for even private equity that they came and invested in the company, and the kind of numbers they have. They export to over 80 countries. They have say over $1,850 million revenue in a year, almost present in all categories of electrical products. A leading brand in India, and obviously coming from almost nowhere actually. So very truly inspiring story, and we have not one. We have actually two experts actually representing that brand. One obviously, which I may call a Bhishma Pitama of Indian businesses. Actually, the one who envisaged, the one who has been visionary actually. Giving a fight to multinational and giving fight in a sense that probably most of them have been scared most of the time with this story, the growth story, Shri Gopal Kabra. We are very honored and humbled, sir, to have you on the show. I know the kind of schedule you all are running is very difficult to spare some time. So thank you for coming over and thank you for doing this show with us. We are very, very hopeful that people will get a lot of perspective and wisdom from your visionary style of doing things and the way this brand happened. We have a second guest actually who had a very, very different background actually, went to New Zealand, worked as an investment banker, then worked with different electrical consumer companies like Electrolux and Whirlpool, and then came back to India 10 years back. So as they say, that a lot of people who have spent time on foreign land, actually, they seized an opportunity that the real growth lies in this country, the kind of demographic dividend we have. It's a big to play out. It is still big to play out. And Shishir Sharma. Shishir is Senior Vice President Marketing at RR Kabel. The last 10 years, the man who truly supported Mr. Kabra and actually took this brand to newer heights, both in terms of brand positioning, mind space, and as well as the numbers actually, both in terms of revenue, distribution, has been Shishir actually. He has aptly supported and actually has been a very, very strong pillar to this great story called RR Kabel. Thank you, Shishir, for joining us. And, I would request all of you to take most of things from this session. This session is going to be very exciting and very visionary. I've seen Kabra ji actually speaking on very leading platforms and very, very large seminars. And one thing I can say that every time actually I heard him speaking, actually I got something actually for myself. So please take things for yourself actually after this session is over. And this is going to be very exciting. Please be open and ask questions also, so that both Kabra ji and Shishir actually can address those also. So over to you, sir, and over to you, Shishir, to take it forward. Thanks, Alish. Thanks for the introduction, and very correctly mentioned by you. As you guys have been running this program from last 35, 40 days, where you bring up the stories of SMSC, I would say, Shailesh, it's gone way beyond that. Because today, if you look at RR Global, is a truly conglomerate. And it's for all the audience present over here. When I'm saying it's RR Global and it's a conglomerate, we all know it's a different entities coming under one umbrella for a common goal is what a conglomerate stands for. There was a time when we used to always have a multinational going back to some foreign land, and multinational can be only companies which belongs to America or Europe. Today is a scenario where we are proud to say that we are one of those conglomerate which is truly multinational and spreading wings over 85 countries, right? And to a level where you very correctly mentioned that Mr. Kabra has been not only going from India, but taking the wings across globe and to a level where probably this is one of the best example. I have that advantage of having two citizenship, or probably dual citizenship, you call it. I hold the New Zealand passport, worked with all the multinationals, and people say multinational, I worked on foreign land itself. And so me and the colleague who's present over here, Tarun, he's from USA. And that's what the Kabra's strength, speaks very clearly, that the people working for him are holding different citizenship. And he's truly global. Had it not been that, we would have never met. That's how the RR
strength is. And being an investment banker, you can imagine when we take a career move, we look into the organization and its growth plan and trajectory. We analyze everything. And you can imagine I would be tempted to join this organization, leaving everything behind because I see Mr. Cabra's vision and he's a guy who's a very, very visionary. That's what, brings it to that. Is it SMSE or is it truly a conglomerate now? A large conglomerate, which, we as Indians should be proud of. Because today we are talking about a turnover of more than 850 million. Very shortly, we will be touching $1 billion of turnover, right? So I would take you quickly to the platform where RR Global is today, which would set up the platform for you guys to think over. The guy who's going to be presenting in front of you his story, who's he. So just to quickly touch upon the RR Global, I would present a slide. Trust me, I would not take much of your time. I won't come between you and Mr. Cabra, but definitely I'll set up the contact. So bringing up some slides. Is my screen visible to you guys? Yes, yes, Vishal. Is it visible? Yeah. Yeah, great. Yeah. So what are we looking at is RR Global, right? And that's a conglomerate, which definitely today, as I was talking about, it's into different product segment, different entities. If you look at, they started with the chemicals, right? From there into FMEG, nowadays we call it, was fast moving electrical goods, to wires and cables, to copper bus bar, copper tapes, to magnet wires. And way different you would find over here is multi-level car parking system. Now, to me, if you ask, ऊपर वाले ने जमीन बनाना तो मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दिया, लोग इसीलिए अपार्टमेंट में जाने लगे. And that's where applying for number of cars coming on the road, the cars has to go on apartment. And this visionary man, Sri Gopal Kabra, thought of it, and we were the pioneer and the first in India to bring this multi-level car parking system. And today, I'm very proud to say that the largest single location installation of multi-level car parking, not only in India but Asia, has been done by RR Parkon at Delhi, which is comprising of 2,200 car park at a single location. That's the size of the single installation, which is successfully done by RR Parkon. As you can see, right from wires and cables to fans to lighting to switches. Now we have come out of the wall. We started with products which goes in the motor, which was magnet wire. From there, we came into wires and cables to chemicals to multi-level car parking system, and we came out of the wall. We started with fans, lighting, switches, appliances, bus duct, which is a futuristic product. And of course, as I said, the presence is more than $850 million, very shortly touching $1 billion. 12 manufacturing plants. And let me share with you, these manufacturing plants are not only just a manufacturing plant, but they meet the global standards. Why it is important? But because when you are going for export, all these countries, whether it's Europe, America, New Zealand, Australia, or Singapore, all these countries, they look for that. What is your carbon footprint? What is that you are doing for the environment? So all your facilities, whether it is R&D, whether it is your facilities, everything has to be a global standard. We today have more than 42 marketing offices. If you look at marketing professionals, more than 500, employees, more than 4,000. And yes, we are all across. As you see our milestone, we started from 1986 with small setup of magnet wires and continuously kept on adding something or the other year on year. And as you see, very recently, 2020, we launched HT cable, power cables as we call. And as I talk to you, probably this month itself, Sri Gopal Kabra has done merger and acquisition. He has taken over a brand known as Aristom, which has been added to our kitty from 2020. The announcement is yet to take place, but I'm just on this platform. I took an opportunity to share with you. That's the speed, that's the growth which Mr. Kabra is going, and under his guidance, RR Global. I've spoken about it, but I thought probably I'll be able to share with you over the video.
Shishir, can you check on the audio? Actually, ऑडियो नहीं है इसमें. Audio is not clear? No, ऑडियो है नहीं. Maybe. So is this video on the internet or is it on your local drive? Shishir, audio, we can't hear the audio actually. The audio is not coming? No. Oh, I'm so sorry. Okay. Because I don't know why it's not coming. So let's drop. Yeah. Okay. So as I spoke to you guys, that that's the milestones. That's the journey of RR Global. As you were seeing in the factory, the facilities which we were showing it to you guys. However, what I'll do is I'll quickly run through and talk through the video. This is the facility which you are looking at, situated at Waghodia, Vadodara, with 250 acres of land mass. Beauty is that it's meeting with the global standards. And once the entire phase of additions of newer and newer plant would be ready, I'm proudly saying that we would be the largest facility of wire and cable by far anywhere in the world. That's the vision which we have. If you look, the solar power plant, and this was, we were the first in India to have this solar power plant with 1.2 megawatt. If you look at the laboratory, that's NABL approved, which means that we are allowed to test for other people as well, like not us, but the independent agencies, they use our laboratory for testing and giving their report. That's the level of facility. And we have to keep that because we have the highest international certification. Which means what happens is that one or the other, when I say that we have the highest international certification, to what does it translate? It translates that continuous feedback coming on the disturbance in video, audio not clear. Am I audible now? Yeah. Now? Hello? Yes, you're audible. Okay, sorry. So I was sharing with you that the landmass which we have of the facility at Waghodia, it's one of the largest facility in today India. Once the entire setup is going to be ready, and these are going to, we are adding on newer and newer plant. So we had first LT plant, now we have added the ST plant. As the facility keeps on adding, this would become the largest facility by far anywhere in the world. And under the single roof, we have the highest number of international certificate. What does it mean? It means that our factory may practically every week, and all these inspectors for different certification, they come without informed, right? And they drop in as a surprise visit. And that's how they keep their certification. So every week, one or the other inspector would be there in our factory. And that assures you that the quality which is generated out of RR Kabil plant, it's meet the global standard. Chahe fir wo Germany ho, Gujarat ho, for us, every life is important. And that's where we say, by far, our quality is one of the best in world. That's what we claim. And if you go to see, you can get any sampling. And not that because me or Tarun works in this organization. If you ask us, honestly, if I'm constructing my house, I would use RR for simple reason, because we have seen the product at depth. A lot of people always see कि क्या wire and cable में क्या होता है, we tend to neglect क्योंकि वो दीवार के पीछे चला जाता है. We do not see that product, and we have absolutely zero interest in it. And to a level where even professionals like architect or consultant, interior designers, nobody pays attention to wire and cable. But what we forget
कि जितनी भी हम लोग चमक देखते हैं, whether you know your air conditioner to your chandeliers to your refrigerator to your microwave, everything is connected through wire. So it's like, you know, your body, which we go to the beauty parlor, we would tend to forget कि arteries और veins अगर clean नहीं हुई तो क्या फायदा, you know. And that's where it comes. We are connected through wire in entire house. And imagine if that fire comes out of the wall, what happens? और ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है. And that's where, you know, RR Kabil do not compromise with any life. And if you look at, we provide wires and cables right from pump से लेके चाहे फिर वो हवाई जहाज क्यों ना हो, हर एक की वायर रिक्वायरमेंट, चाहे फिर वो अभी वेंटिलेटर के वायर हो या फिर वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, पावर लाइंस के वायर हो या फिर सोलार हो या फिर, यू नो, पंप के वायर, एवरीथिंग वी मैन्युफैक्चर. सिक्योरिटी कैमरास हो, सीसीटीवी या स्पीकर वायर. We need to understand one thing: every CCTV camera to project a good image needs a good cable. एक अच्छे कैमरा को एक अच्छे केबल की जरूरत है. एक अच्छे रेफ्रिजरेटर, एक माइक्रोवेव को अच्छे केबल की जरूरत है. एक अच्छे गीजर को भी केबल की जरूरत है. अदरवाइज लॉट ऑफ टाइम यू विल फाइंड देयर इज अ स्पार्किंग एंड गीजर उड़ गया. इमेजिन इफ गीजर ही उड़ा वहां तक ठीक है, हाउस उड़ जाए तो क्या हो. एंड दैट व्हाट कीप्स ऑन हैपनिंग. अनफॉर्चुनेटली we do not have that strict standards by the government. That's where media comes into a role. अगर आप उस चीज को आगे ले जाएं through your RJ talks, and you need to highlight one thing very important. We all know that, you know, fire, every wire catches fire, and there are myths prevailing in the market. People talk कि, you know, fire catch नहीं करता कोई भी wire. Now I don't know, does it exist? To be honest, if you look at PVC जिस पे चढ़ा हुआ होगा वो आग पकड़ेगा. That's the nature of the insulation. You can't deny that. But what happens is a lot of people, layman people, they buy into all these exaggerations and puffery of all these advertising world becomes a myth and prevail in the market. So how do we break that myth? Either the government comes with the strict norms, or you guys as a media can play a vital role bringing this awareness. And that's where we had this Mythbuster series we came up with, you know, whereby we said, at least RR Kabil would be true, even in advertising when we talk to the people. And it's our duty to bring out to the notice that what are you putting behind your walls? What are you playing? You should be aware about. And let me put it forward to you that whenever there is a fire accident, maximum life goes because of smoke, poisonous, thick, black smoke, and not because of the fire. People die because of that, inhaling those smoke. So that's unfortunate part, sad part, but, you know, who can do that? You guys can bring it. And let me tell you, RR was the first, and even today, we are the only company which has all this you see at the bottom: CE, REACH, ROHS, CPR. ROHS भी सबसे पहले हम लेके आए. What does it mean to me? Simple terms में अगर मैं बोलूं तो hazardous gases को जो reduce कर देते हैं, 200 gases plus को हम इंसुलेशन में से निकाल देते हैं ताकि किसी और कारण से भी आग लगे तो पीपल शुड नॉट डाई ऑफ स्मोक, पॉइजनस स्मोक. हमारे जितने भी वायर को अगर आप चला के देखेंगे तो धुआं जो निकलता है दैट्स ट्रांसपेरेंट वाइट स्मोक. दैट मीन्स रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आपको टाइम मिलता है. पीपल कैन सी द एग्जिट साइन, दे कैन रन आउट ऑफ द फायर हैजार्ड कंडीशंस. दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट. बिकॉज यूरोप में वो मैंडेटरी है, अगर वहां की सरकार अलाउ नहीं करती. Should we make it substandard product and give it to Indian market? We say no, we don't do that. We would give the same standard, same quality. That's what RR quality stands for, and that is why today RR is one of the largest exporter in India today for wires and cables, and it's absolutely available across globe. And if you go to see, we many countries, हम लोगों को खुशी होती है बताते हुए when we say कि हम वहाँ पे we are the highest selling Indian brand in these countries. So when we said कि इस तरह के वायर, and we make wires like Firex, और इसकी एड भी हमने अक्षय कुमार को लिया है ब्रांड एम्बेसडर, and you will find that, you know, this sort of a wire, it doesn't emit at all a smoke. अगर आप इसमें आग लगाएंगे तो, you know, I remember this story when Akshay Kumar, obviously as a superstar, he said कि मैं जो प्रोडक्ट की ऐड कर रहा हूँ मैं देखना चाहूँगा खुद ये आग पकड़ता है या नहीं. He burned the wire right in front of me, Firex, and it was not catching fire. And he said कि आप मुझसे झूठ बुलवा रहे हैं. I said why? He said आप बोलते कि हर वायर आग पकड़ता है मगर ये तो आग ही नहीं पकड़ रहा है. I said keep the fire on.
ये बहुत ही कम धुआं छोड़ेगा, आग इसमें भी होगी मगर नहीं के बराबर. And then he goes कि he kept on burning, and then he realized, and first thing he asked his secretary, he said, Zenobia, अपने ऑफिस में कौन सा लगा हुआ है? Now that's speaks of everything, you know. So what we were talking about is, you see, this is what ordinary wire, ये Firex wire का smoke आप देख रहे हैं, negligible, ये काला जहरीला धुआं, this is the culprit. If you look at exit sign, कभी भी, you know, fire condition में 6 मिनट के बाद यहाँ पे exit sign दिख रहा है, धुआं white है, here everything is gone. This is what happens. Smoke density, toxicity is very high in PVC, negligible in Firex, and that's what product which RR Kabil gives. हम लोग यूनिले टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे ये भी हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जहाँ वायर टूटता ही नहीं है. अगर आप देखेंगे तो थ्रू आउट वायर को कहीं से भी छील लीजिए, बंचिंग होती है. What I'm trying to bring across here is that it's a company which stand on 3 pillars: trust, transparency, and innovation. Every product we bring are innovative products. That's all wanted to tell you guys. As I said, every product, whether it's CCTV camera or everything, are very, very innovative. That's the reason our quality is paramount, and we are present globally. Right? With this, probably I would not take much on the time आप लोगों का, and I would quickly touch upon this ad. मेरा दिख रहा है? Screen is visible to you guys? Yes. Yeah. Yeah. So when you're playing the audio, just you can play with the option Now of. is it? No, we cannot hear you, but we will be able to hear this. If you change the presentation okay. setting, just stop the presentation, and then use there is an option to present. There is a third option which says present using a Chrome tab. Use that option to present. You'll be able to. Do But it. then I won't go on Chrome. Would be little. I'll have to. Yeah, download go to it. the window of the meeting, and where you have done meet.google.com. There you get option to, you can do a stop present here, and use the third last option Which one? This to one? present. Yeah, you can stop presenting, not here. Stop presenting once, and once you Yeah. stop presenting, you can see the option there. There are 3 options. The third option, the last option, is the one we should be using, which says present using a Chrome tab. And you would select the same, YouTube tab after you select that option. So where you are saying present now, it will give me 3 options, is it? Yeah. You have to use the third last option. Yeah. It's not giving me currently. It's saying present now. That's fine. Sure. That's fine. So what I wanted to, so those are the ads which I wanted to show you, which is Akshay Kumar ad, and whatever I spoke, that's narrated through the ad, and there is a demo also done by him. So that is what I wanted to share. But nevertheless, if the audio is not coming, it would not be that impactful. And I have a problem of overrunning the time. So I have already crossed my time, which I realized. So I always say that I won't come, but unfortunately, हर आदमी की कोई ना कोई weakness होती है, और मेरी भी यही weakness है. So I've overrun the time. Apologize for that, and I'll request the guy who's the magician making this organization from, probably it was in negative, what a lot of people say, from negative. जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि उन्होंने 1000 रुपए से शुरू किया था, वो चांदी का लोटा लेके आए थे और उन्होंने शहर में ये किया. इस आदमी ने जब बिजनेस संभाला तो 15 साल की उम्र थी और बिजनेस नेगेटिव में था. नाउ यू कैन इमेजिन, लोग पॉजिटिव तो होता है, एटलीस्ट लोटा में पॉजिटिव, तो किसी को कुछ देना तो नहीं है. चांदी का लोटा बेचेगा, 1000 रुपए पॉकेट में तो आएंगे. यहाँ तो जो आदमी उठा रहा है कि उधारी है. That's where, and from there, building the empire, which is going to be very shortly $1 billion turnover and present in more than 85 countries. So the guy who has done this magic, made this conglomerate, global conglomerate, is Sri Gopal Kabra. I would like to hand over mic to him. Thank you, Shishir. First of all, I'm very much thankful to Big FM team who gave me the opportunity. Today, you saw the presentation of what we are.
लेकिन मैं क्या है कि क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी सेमिनार में अपने बिजनेस की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बिजनेस की बात करना क्या है कि अच्छी बात नहीं है। उससे जब दूसरी बातें करें तो शायद क्या है कि क्योंकि लोग आते क्यों इस सेमिनार में, कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्या है कि धन तो मेरे पास है नहीं तो दे सकूं, लेकिन ज्ञान जितना भी है, क्योंकि एक तो पहली बात तो क्या है कि मेरे साथ में आजकल मैं हिंदी में इसलिए ज्यादा बोलता हूँ कि जब से मोदी जी ने आत्मनिर्भर की बात की है तो हमारा, जब तक अगर हम हिंदी में नहीं बोलेंगे तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। यानी अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो यानी विदेश में निर्भर है, हिंदी में बोलेंगे तो हम खुद पे निर्भर है। तो ये भी एक क्या है कि एक नया मैंने शुरू किया है। तो पहली बात तो अरे ये कहूंगा कि इस लॉकडाउन को लॉकडाउन नहीं समझे, अरे लोगों इससे बाहर निकले, इसे लॉक ओपनिंग है बेसिकली। क्योंकि इतना समय जीवन में हमको मिला ही नहीं कि हम अपने बारे में सोचें या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें। तो मेरे को लगता है कि वी हैव गॉट वन स्टेप अहेड, क्योंकि ये जो 3-3.5 महीने हैं और आगे लगता है कि जो हम खास करके बम्बई वाले उनको तो 1.5-2 महीना और इसमें रहना है। तो हम जब ये 5-7 महीने बाद जब निकलेंगे तो बहुत सारी शारीरिक और मानसिक एनर्जी को लेके बाहर निकलेंगे। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस। अब ये सोचना है कि इस पीरियड में हमने किया क्या। आज दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ ऑल्सो, कभी कभी मेरे सब ऑडियो उनको भी मैंने 3 दिन पर ऐसे दिमाग में आया, जरा पूछे तो सही, 100 दिन से बात हो रही है कुछ हो रहे, तो मैंने उनको एक मैसेज किया था व्हाट्सएप। तो वास्तव में मौका क्या था कि सी देयर इज टू थिंग इन लाइफ, वन इज लर्निंग, अदर इज अर्निंग। सी अर्निंग कैन नॉट बी फॉर एवर, लेकिन लर्निंग ये हमेशा चलती है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हमको एक लर्निंग ये जो करनी थी हमको कि मैं खुद के लिए क्या इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंप्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि खाली खुद के लिए इंप्रूव करूंगा तो भी काम करनी है, ऑर्गेनाइजेशन तो करना ही करना है। क्योंकि क्या है कि जो 8 घंटे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के है, 16 घंटे खुद के हैं। तो 1/3 अगर 2/3 को भी अगर हम बात करें तो हमको, बिकॉज वी आर पेड बाय कंपनी, तो हमारे को टाइम तो देना ही चाहिए। लॉकडाउन में जो ट्रेवलिंग टाइम बचा तो 8 घंटे के बदले वो शायद 11-12 घंटा है, हाफ द टाइम इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हाफ द टाइम फॉर द इंडिविजुअल। तो दोनों में हमने क्या सीखा, क्या किया। चैलेंज है, आई एग्री, नया तरीका आ गया, ये नहीं सही है। अब तकलीफ क्या है कि जिसने इसको स्वीकार कर लिया उसको कोई तकलीफ नहीं है, जो इसको स्वीकार नहीं कर रहा और इसी में रो रहा है। सीधा 2 तरह के लोग हैं। एक हर परिस्थिति का सामना करना, जब सीमा पे जवान होता है तो जवान क्या सोचता है, मैं मरूंगा नहीं, वो सोचता है बचने की, मेरे को सामने वाले को मारना है। अगर वो अपने आप को बचाने की सोचेगा तो सामने वाले को मारेगा नहीं। तो हमारे जीवन में वास्तव में हम लोग एक सीमा पर है, ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि हम मिलिट्री की तरह हैं और हमको सीमा पे है। और सीमा पे जो सैनिक होता है वो आगे पीछे का सोचता नहीं है, वो वास्तव में एकदम उस टाइम पे जब काम में होता है तो मात्र वर्तमान के लिए सोचता है। वो जो 2 घंटा 4 घंटा या 12 घंटे या 20 घंटे की जो भी लड़ाई होती है, 7 दिन की होती है, तो उस मोमेंट में चला जाता है। वो पास्ट नहीं देखता कि मेरे साथ कमांडर ने क्या किया, कि उसने कर्नल ने मेरे साथ क्या बिहेव किया, मेरे को उस टाइम ऐसा क्यों बोला, वो सब सोचने का समय नहीं है। तो दोस्तों क्या है कि इट्स राइट टाइम कि हम अपने आप को बदल लें। हमने भी जो कुछ अचीव किया है, मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया, वैसी बात नहीं है। वास्तव में 3-4 चीजें जो जीवन में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है ईमानदारी, बरोबर है। दूसरी बात बहुत आगे तक की सोच। तीसरी बात सबको साथ में लेके चलना। गलती कहाँ होती है, आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो पीछे वाले को भूल जाता है। पीछे वाले को बहुत ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पीछे वाले को भूलने की जरूरत नहीं है। हर चीज में आपको परसेंटेज बांधना ही पड़ेगा। पास्ट में जीना बहुत गलती है, वर्तमान में जियो, भविष्य में जियो। पास्ट से जो सीखा है उसको अगर जरूरत है तो इम्प्लीमेंट करो, वरना उस पास्ट को आप भूल जाओ। जीवन में एक बीमारी आई थी, बीमारी निकल गई। जब अपना हार्ट में तकलीफ होती है तो बाईपास इसलिए कराते हैं कि हार्ट की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। तो ये जो बाईपास, ये अपने माइंड को बाईपास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइंड जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप जैसा सेट करना चाहे वैसे सेट कर ले। मैं साल में 120 से 140 फ्लाइट मेरी होती है, इतना मैं ट्रेवल करता हूँ। खुद मैं 99 कंट्री घुमा और इंडिया पूरा वर्ल्ड वाइड, जहाँ ऐसी कोई जगह नहीं जाने गया हूँ। लेकिन 3.5 महीने से मैं अपना, मेरे बैग पैक की नहीं है, मैंने होटल की चाबी नहीं ली है, मैंने एयरक्राफ्ट में गया नहीं हूँ। जो व्यक्ति 20 साल से लगातार इस प्रकार की ट्रेवलिंग करता हो और दिन भर मेरा काम है लोगों से मिलना, मैं डे टू डे काम देखता नहीं हूँ, और पिछले 3.5 महीने में मैं किसी से मिला नहीं हूँ। अरे घर में है मेरी पत्नी बेटी और अपना जो घर में सेवक है, उसके अलावा मैं किसी से मिला ही नहीं हूँ।
तो आप सोचो कि क्या परिस्थिति होती होगी, लेकिन मालूम हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लेना एक सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अब ये जो समस्या है अभी इसमें, क्योंकि काफी आप लोग सभी बिग एफएम से हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए कि मन में कई विचार आते होंगे कि हमारा जॉब का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे अपॉर्चुनिटी क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। ये चिंता में सब लोग हैं, हम भी चिंता में थोड़े बहुत रहते हैं, क्योंकि आज हमारी कंपनी में हमारा 21 करोड़ रुपए महीने का सैलरी है, और कुछ बिजनेस था ही नहीं। अप्रैल में जीरो था, मई में थोड़ा बहुत हुआ, जून में कुछ बिजनेस में हो रहा है। पार्किंग बिजनेस है, उसमें पूरा बिल्डर से रिलेटेड है, बिल्डर की हालत खराब है। तो ठीक है, ये हमारे अकेले के साथ हो रहा है क्या? आदमी ने चिंता तब करनी चाहिए कि जो चीज हमारे अकेले के साथ होती है। अगर जब चीज सबके साथ हो रही है तो उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्या है कि एक चीज हमेशा मानता हूं कि इकोनॉमी की साइज देश की तो हम बदली नहीं कर सकते, लेकिन हमारी खुद की इकोनॉमी साइज बदली कर सकते हैं। अगर आप रेडियो एफएम, बिग एफएम है, तो बिग एफएम में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इसको जो भी आप लोग कर रहे हैं यहां तक ही सीमित रखेंगे? अगर अमेजोन किताब बेचते बेचते आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई, नेटफ्लिक्स भी उसका है, आप जो जो चीज नाम ले उसकी है, तो शुरुआत किससे की? एक छोटी सी चीज से, बुक बेचने से। लेकिन समय समय पे जो टेक्नोलॉजी के आधार पे, अपॉर्चुनिटी के आधार पे आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई। आज ये रेडियो आपका जो बिजनेस है इतना बड़ा क्यों हुआ? ये रेडियो बिजनेस इसलिए बड़ा हुआ इतना क्योंकि पहले सरकारी कंट्रोल में रहा, आकाशवाणी में प्रसार भारती थी। जब प्राइवेट को ओपन अप किया तो ये रेडियो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई। अब वैसे ही हम जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर अपने माइंड को ओपन नहीं करेंगे तो हम भी बड़े नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा इसलिए बोलता हूँ, ये लॉकडाउन नहीं है, ये लोक ओपनिंग, ये दिमाग का जो लोग है ना, इसको वास्तव में ओपन, ब्रेन सर्जरी नहीं कराना डॉक्टर के पास, बहुत रिस्क हो जाएगा, लेकिन खुद के ब्रेन को खुद को ही ओपन करना है। शांति से बैठिए, मैं बोलता हूँ आप 1-2 दिन आप सबको छुट्टी दीजिए, एक दिन, कि आप सोच के आइए और नई चीज को आप क्या सीख के आ रहे हैं और पुरानी चीज को डिलीट कर दीजिए। सी मोबाइल से एक सीखने को मिला, पहले अभी समझो व्हाट्सएप आ गया, पहले एसएमएस आता तो बोलता था, एसएमएस आया, अपने पास ऑप्शन तो है डिलीट करने का। तो जो कुछ भी हमारी, वैसे क्या है कि जितना हमने सीखा आज तक उसको अगर अनलर्न नहीं करेंगे तो नया नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो जितनी जगह उतनी जगह आएगी, स्टोरेज तो फिक्स है। तो स्टोरेज कब नया आएगा? जब पुराना निकलेगा तो आएगा। तो मेहरबानी करके सब लोग एक थोड़ा सा समय निकालिए, आप 3 घंटा 6 घंटा, आपको लगता है किसी को 3 दिन लगता है, किसी को 7 दिन लगता है, जितने दिन लगते हैं, एक बार मेहरबानी करके अपने आप को, आपके दिमाग में जितना भी क्लटर है, क्या है कि दिमाग के क्लटर को जब आप, मैं बोलता हूँ कि एक डायरी लीजिए, बिग एफएम से आप सबको डायरी दीजिए, तो मैं आर कार्ड में सबको एक डायरी भेजता हूँ 200 पेज की बढ़िया। उसमें दिमाग के आप क्लटर नोट डाउन करते जाइए, बचपन से लेके पैदा हुआ उसमें भी हमारे हाथ में नहीं था, तो कोई चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, आप समझिए। लेकिन जो क्लटर दिमाग में सेट हो गया, उस क्लटर को आप नोट डाउन करिए। मैं आपको बोलता हूँ, आप मैंने भी चालू किया है, आपके कम से कम 25 पेज, 50 पेज, 100 पेज और 150 पेज भर जाएंगे, आंखों में आंसू भी आएंगे कि मेरे साथ क्या क्या अन्याय हुआ था। लेकिन जब तक वो आंखों के आंसू आपके निकलेंगे नहीं, जब तक आपके दिमाग का क्लटर आपको दिमाग में आएगा नहीं ध्यान में, तब तक आगे की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये वास्तव में जो वापस में ये लॉकडाउन चलने वाला है, ये 1.5-2 महीना तो कम से कम और हमारे साथ में रहने वाला है। तो एक, अगर ये मौके को अगर हमें क्लटर साफ करने में लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि हम सभी एक डिफरेंट व्यक्ति बनकर निकलेंगे, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि अभी इसमें 2 सर्कल बनने वाले हैं। आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1918 का फ्लू, अभी अपने को ये कोरोना हुआ इसलिए 1918 में हुआ था मालूम पड़ा, वरना स्पेनिश फ्लू कितने लोग को मालूम था? अगर इसमें पूछे तो मेरे को लगता है नहीं कि 0.01% को स्पेनिश फ्लू के बारे में मालूम था। तो लेकिन जब जब भी रिसेशन आया है, जब जब भी वर्ल्ड वॉर के बाद रिसेशन आया है, तो उसके बाद एक रोशनी ऊपर बहुत जोर से निकली। लेकिन हम सबको स्टडी करने की जरूरत है कि किसकी हुई। अगर आप सर्कल, क्या 2 सर्कल बनने वाले, अब एक सर्कल बनेगा लूजर का और एक सर्कल बनेगा ग्रोथ वालों का। अभी आप 2019 तक की जो कंपनियां पावरफुल थी, जो बिजनेस पावरफुल थे, 2020 का सीन अलग होगा, 2021 का अलग होगा, 2022 का अलग होगा। आप सब स्टडी करिए शांति। अभी देखिए, अगर 1947 में जो टॉप 20 पैसे वाले थे, रुपए वाले थे, 1977 में उसमें से
10 निकल गए। और 1997 में जो 77 के टॉप 20 पैसे वाले रुपए वाले थे इंडिया के बिलियनर्स से थे, उसमें 3 या 4 बचे। तो हमेशा क्या है कि नए लोग को स्कोप है, वैसे नए लोग में वो बिलियनर्स में स्कोप है, तो हम मिलियनर्स को भी स्कोप है ना। वो एम और बी का ही फर्क है, बाकी तो फर्क नहीं है ना। तो ये क्या है कि छोटे छोटे शब्दों का ही फर्क है। जैसे हमेशा बोलता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो इंग्लिश के शब्द का ही मतलब है, शॉर्ट यानी आप छोटे सोचते हो, लॉन्ग टर्म यानी आप लंबा सोचते हो। बिग एफएम यानी आपको बड़ा करना है, आपकी जवाबदारी, क्योंकि आपने नाम ही ऐसा दिया है। अगर आप आपके नाम के अनुरूप अगर कोई काम नहीं करेंगे तो खाली बिग एफएम कितना दिन बिग एफएम रहेगा, कल कोई ना कोई आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपके नाम के जिसने भी आपका नाम किया रखा है बिग एफएम, इट्स अ गुड नेम। अगर उसको उसके अनुरूप अगर काम नहीं करते, अगर समझो आज आर काबिल की जो इमेज बनी है, हमने 20 साल में फ्रॉम जीरो टू, अगर आर काबिल को 2400 करोड़ रुपए तक विश्वास के साथ कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में किया नहीं, क्योंकि क्वालिटी तो जरूरी है। सी देयर आर टू थिंग्स इन लाइफ, सर्टेन थिंग्स नॉट टू बी डिस्कस, क्वालिटी इज नॉट टू बी डिस्कस। जब तक आपके दिमाग में आता नहीं है तब तक ये चीजें रोज ही रोज आपको तकलीफ देगी देगी। तो अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कैडबरी का केस स्टडी। कैडबरी हम सभी यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी 30 साल के ऊपर के होंगे लगभग, या कुछ 25 साल के 26 साल के होंगे, तो उनके लिए भी लागू होता है। हम बचपन से लेकर आज तक कैडबरी यानी चॉकलेट, और वो सच्चाई भी है, आज भी सच्चाई है कि कैडबरी यानी चॉकलेट ही है। लेकिन उन्होंने जो 15 साल पहले कैंपेन बनाया कुछ मीठा हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, चॉकलेट को मार्केट को बड़ा नहीं किया, लेकिन मिठाई वालों के मार्केट को अपने हाथ में ले लिया। आजकल राखी में बहन क्या लाती है या भाई क्या देता है बहन को, चॉकलेट। दिवाली तक जो अरे समझिए हजारों वर्षों से चल रहा होगा, उसमें हम एक दूसरे को मिठाई देते थे। आजकल मिठाई के बदले कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी चॉकलेट आ जाती है। तो डेयरी मिल्क इज अ बिगर सेल्स देन कैडबरी, लेकिन हम जानते हैं कैडबरी को ज्यादा। तो लेकिन आप सोचिए कि हमारे पास अब ऑप्शन क्या है, मार्केट साइज बड़ी होगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हम किसी और का मार्केट साइज को हम कैसे लें, वो उस पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वरना एक चीज पक्की है कि कोई भी बिजनेस मरेगा नहीं, वापस दुनिया वैसी की वैसी ही नॉर्मल होने वाली है। तरीके चेंज होंगे, हम शायद मास्क पहन के घूमेंगे, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहेंगे दिन भर, दूर से बात करेंगे, कुछ भी एक अलग तरीका होगा। वी शुड बी लकी कि हमने वो जीवन भी देखा है जो पहले हम बिंदास घूमते थे, रोड पे पानी पूरी भी खाते थे। आजकल सोचना पड़ता है कि ताज में भी खाऊं कि नहीं खाऊं, हाइजीन है कि नहीं, कोरोना है कि नहीं। तो ये भी देख लिया, इसके बाद आने वाला भी और देखेंगे। तो एक जीवन में हम कितने भाग्यशाली है, समझिए कि हम 3 तरह का जीवन देख रहे हैं। वो बाय वन गेट वन तो फ्री देखा ही सुना था, आपको सेल में देखते हैं। तो यहाँ तो बाय वन, एक जीवन में 3 तरह के जीवन हम लेंगे, तो वो सेल से भी कितना बड़ा हो गया है। तो अरे इसको ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन समझनी चाहिए हमको, कि ईश्वर ने हमको वास्तव में एक सोचने का मौका दिया। अब देखिए लॉकडाउन के कारण से जो सब्जियों की क्वालिटी है, जो फ्रूट की क्वालिटी आ रही है, इतना मीठा आने लग गया। या तो 2 रीजन होगा, बाहर कुछ खाने को मिलता नहीं है इसलिए जो घर में मिलता है वो मीठा लगता है। लेकिन वास्तव में क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ फूड जो हमारे अंदर अभी, हमने क्योंकि बाहर कुछ खा नहीं रहे, तो हमारा इनर हेल्थ, ट्रेवलिंग नहीं कर रहे इसलिए शारीरिक हेल्थ, माइंड को ज्यादा काम नहीं है, कुछ लोगों ने कुछ किया ही नहीं, यही बात पक्की है। तो वो माइंड भी फिर, तो शरीर के अंदर का भाग, शरीर दिमाग, तीनों में हमको एक फ्रेश चीजें आई है। तो इसको इतनी एनर्जी के साथ हम बाहर निकलेंगे कि आप सोचे मत। अब आपके लिए बताता हूँ, बिग एफएम के लिए आप कितने दिन मेरे को बताइए कि इंटरटेनमेंट और न्यूज चलाएंगे। वास्तव में इस देश को जरूरत क्या है, इस देश को जरूरत 2 चीजों की है। हम सबको कुछ ना कुछ कंपनी के अलावा देश के लिए भी कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जरूरत 2 चीजों की भूख है, एक है नॉलेज की और दूसरी है पॉजिटिविटी की। ये पॉजिटिविटी सरकार नहीं ला सकती है सर, आप समझिए। ये पॉजिटिविटी हर कंपनी के हम जो सीनियर्स हैं उनको हमारे लोगों के लिए लानी है। और चूंकि आप ये मीडिया चला रहे हैं तो आपके पास इतना बड़ा हथियार है। ऐसी हम हमारी कंपनी में क्या कर सकते हैं, हमारे जो 4000 लोग काम करते हैं उनके अंदर पॉजिटिव ला देंगे, हमारे सप्लायर के अंदर ला देंगे, हमारे जो 25,000 रिटेलर है उनके लिए ला देंगे। लेकिन आपकी ताकत तो हमसे बहुत बड़ी है। आपका ये कर्तव्य होता है कि अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएं,
पॉजिटिविटी की बातें करें क्या, और दूसरी हम जो आगे बढ़ेंगे भविष्य में वो नॉलेज के आधार पर बढ़ेंगे। आज इंडिया का जो इतना नाम हुआ, इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्रीज ने पूरे विश्व में करके बताया कि इंडिया आज आईटी में सबसे टॉप में है वर्ल्ड में, तो ये कहाँ से हुआ? नॉलेज से। तो ये नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म बनाई है बिग एफएम को। लोगों को सिर्फ बताता हूँ, लोग कंटाल जाएंगे। मैं भी आजकल आपका रेडियो सुबह सुबह, मेरी वाइफ क्या जिम करती है, एक्सरसाइज करती है घर में, तो हम लोग वो रेडियो चालू करते हैं, उसको बहुत मजा आता है और मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता है, क्योंकि वो सब वो कुछ भी बकवास चल रही है या हंसी मजाक के लिए चल रहे हैं। तो कितना हम हंसी मजाक करेंगे सर, बताइए ना। जीवन ही एक मजाक बन गया हमारा कोरोना के चक्कर में, तो हमको कितनी मजाक पसंद आएगी। तो वास्तव में ये टाइम आ गया कि आप लोग ऐसे से नए नए प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए कि जिसमें लोगों को नॉलेज मिले। देखिए, जो शिक्षा होनी थी वो हो गई। आधे लोग कॉलेज छूट गए, आधे लोग कॉलेज में भी कैसी पढ़ाई होती है, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, हम सब जानते हैं। हमारे यहाँ कोई 20 स्कूल में जाने वाले लोग कितने, हर एक को जा नहीं सकता। लेकिन ये बिग एफएम को एक नॉलेज प्लेटफॉर्म बनाना, बिग एफएम को एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बनाना, बिग एफएम को एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म बनाना, ये आपके लिए सबसे पहली शुरुआत आप कर सकते हैं। अरे वही कैडबरी वाला किस्सा करना पड़ेगा। तो दो चीज होती है कि एक नया कोर्स होता है कि एक सर्कल है जिसमें रेगुलर काम करते रहे, लेकिन यू नीड ए वन थर्ड टीम विच इज थिंकिंग आउट ऑफ सर्कल, आउट ऑफ बॉक्स जो इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन मैं इसको हमेशा दो सर्कल बोलता हूँ। लेकिन कुछ लोग सर्कल के अंदर ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, होने वाला नहीं है। लेकिन यू नीड ए टीम जो दूसरे सर्कल में बाहर से देख के बात करेगी, वो आपके पास लेके आएगी और आपके काम है इम्प्लीमेंटेशन करने का। तो यू नीड ए टू टाइप ऑफ टीम। इसको कोई भी आप टाइटल दे सकते हैं कि एक को बिग दे दो, एक को एफएम दे दो, एक को अल्फा दे दो, एक को बीटा दे दो, एक को श्रीवास्तव दे दो, एक को शर्मा जी दे दो, कुछ भी नाम देना है आप। लेकिन नाम देख के वास्तव में आपके कंपनी के अंदर एक ये आउटसाइड का क्या हो सकता है उसको लेके आवे और रहे। क्योंकि जो काम कर रहे हैं और जैसे काम कर रहे हैं ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, तरीका बदलेगा। आप लिख लीजिए, अपॉर्चुनिटी बहुत है, कोई भी अपॉर्चुनिटी जीवन में खत्म होने वाली नहीं है। वापस अपने आप को इतना मजबूत करो, और हम सब मजबूत, ऐसे मन का भ्रम है क्या होगा, पगार कट जाएगी, 20% पगार काट रही है कंपनी, सब कुछ होने वाला है। कंपनी की भी तो मजबूरी है कि नहीं। हमको ये सोचना है, फिर भी कंपनी निकाल नहीं रही है, वो एक आपको देखना है। और अगर निकाल भी देती है तो मेरे को बताइए ना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने रिजाइन किया कंपनी से दूसरी कंपनी में गए तो उसको क्या हुआ, 90% लोग तरक्की करते हैं, 10% लोग फंस जाते हैं लालच में। मेरे को बिग एफएम का सीनियर आदमी है तो अपना रेडियो मिर्ची ने ले लिया, क्यों? पूरा कस्टमर लाके देगा। कस्टमर कंपनी के साथ में रहता है, व्यक्ति के साथ में रहता है। ये भी लोगों की भूल है, कुछ कंपनियां ऐसा भी करती है, इसलिए लेती है। ठीक है, 10% 20% फायदा होगा, लेकिन एक कंपनी का ब्रांड होता है, एक व्यक्ति का ब्रांड होता है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबका कंपनी का तो ब्रांड है, लेकिन हम सभी प्रोफेशनल है। आज एक ध्यान रखिए, आप कितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हो, कितने भी बड़े सक्सेसफुल हो, या कितने भी जूनियर हो, चाहे ड्राइवर होता है, चाहे प्यून होता है, चाहे सीईओ होता है, मैं हर एक को एक प्रोफेशनल मानता हूँ। क्योंकि मेरा ड्राइवर मेरे से ज्यादा होशियार है, इसलिए मैं गाड़ी मेरी वो चलाता है। मेरे ऑफिस में जो प्यून साफ सफाई करता है वो मेरे से ज्यादा साफ सफाई में होशियारी से साफ सफाई करता है। तो लेकिन उसमें वो गुण तो है ना, वो गुण मेरे को तो आता नहीं साफ सफाई करना अच्छे से। मैं अगर अपनी टेबल साफ करूंगा तो मेरे को मालूम कैसे मैं गंदी कर दूंगा, उल्टी का जो अच्छी है उसको भी खराब कर दूंगा। तो लेकिन हर एक के अंदर भगवान ने एक गुण दिया है, भगवान ने एक हुनर दिया है, तो उसका उपयोग उसको करने दो। हम सबको साथ में लेके चले। आज की तारीख में जरूरत है हमारे सबके बीच में इमोशनल और स्पिरिचुअल फैब्रिक कैसे तैयार किया जाए। आज कंपनियों में, देश की जनता में, आम पब्लिक में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अगर हम सब मिलकर अगर वास्तव में साथ दें तो ये इमोशनल और स्पिरिचुअल फैब्रिक को एक क्रिएट किया जाए इनसाइड द कंपनी, आउटसाइड द कंपनी, एमंग द फ्रेंड सर्कल, एमंग द सोशल सर्कल। ये अगर हम करेंगे तो वापस ये कह सकता हूँ कि वो सचिन तेंदुलकर की एक बात बहुत अच्छी याद आती है। जब उसको क्रिकेट खेल रहा था, उसको चोट लगी थी बहुत जोर से, तो डॉक्टर ने उसको बोला था कि तुम मत खेलो, तो यू आर नॉट इनकेपेबल कि आप खेल सकते हो। तो एक ही बात उसने बोला था, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा और मैं खेलूंगा। तो उसी तरह हम सबको एक वापस एक ये जीवन का नया खेल खेलना है और नया जीवन का तरीका खुलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आप फिर कभी बुलाएंगे तो फिर आप लोग के साथ कभी भी मैं हाजिर हूँ। अगर मेरे बोलने से
अगर इस देश का लाभ होता है, इस देश के लोगों का लाभ होता है और बिग एफएम के लोगों का लाभ होता है, तो ये मेरे लिए वास्तव में जो ईश्वर ने दिया है, एक थोड़ा इसको आर्ट ऑफ गिविंग समझ के भी मैं करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैंने सर शुरुआत में ही सेशन के कहा था कि जब भी मैंने आपको सुना है और इतनी सारी टॉक्स में सुना है तो कुछ ना कुछ लेके गया, और शायद पूरी टीम भी वही होगी। और शायद इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं वो इस चीज का प्रूव है कि आई थिंक so much of a learning and so much of takeaways, probably we all know about it, but शायद हम कभी realize या कभी उस बारे में सोचते नहीं है। And especially one thing very clearly stood out was emotional and this spiritual fabric. Very much to do actually. The way, obviously, the kind of difficulties we are going through at that emotional and spiritual fabric is very important to build. And thank you, sir, for all these words of wisdom and pearls of wisdom. और जैसा आपने कहा कि हर अपॉर्चुनिटीज में एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जस्ट इन एक्सटेंशन ऑफ दैट कि ऑल बिग आइकॉनिक कंपनीज ऑफ टुडेज, व्हाट्सएप, उबर, Pinterest, all these were built during the last recession of 2009. लेमन ब्रदर्स का जो रिसेशन हुआ था उसमें ये सारी कंपनीज बनी थी जो आज इतनी बड़ी आइकॉनिक कंपनीज हैं। और लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि बहुत सारी जो नेक्स्ट डिकेड की आइकॉनिक कंपनीज होंगी वो इस समय बिल्ड होंगी या बिल्ड होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होंगी इन सम पार्ट ऑफ ग्लोब, जो हमें शायद बाद में पता लगे। सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी एंड वेरी पॉजिटिव सेशन। आई वोंट आस्क मच बिकॉज बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आंसर हो गई हैं। रेदर I would like to invite our Chief Executive Officer, Abe Thomas, to share his thoughts and probably if he wants to ask. Abe? First of all, good morning, sir and Shishir, for an absolutely inspiring morning. The simplicity, the positivity that you've instilled in all of us is evident from the number of reactions that you're getting from the team. So your achievements have truly been inspiring. As an Indian, we feel proud that as a company, the heights to which you have grown. But the future, the positivity that you've shared with us will stay with us for a long time. And we are extremely enthused with the opportunity that will come post this. So I have two questions, if you don't mind. It is more relating to specifics of how things will be post this. One is, there is a estimate that the entire real estate housing sector will transform with people realizing the need for better housing, for larger housing, for housing, maybe decongested housing, moving beyond cities to be able to work, because you're able to now work using technology and so on and so forth. So do you see this really happening? Because on the other end, our town planning is really bad. So which is why the larger cities we see like Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Chennai are struggling more than the other cities because town planning is not there. And there's so much of clutter that social distancing may not be possible. So do you see that at an overall level, while our Prime Minister has given a call for housing for all, do you think that will a greater impetus with this? And I'll also ask my second question was related to your category, which is conventionally considered a B2B category. It's a low involvement category for the consumer. It's the architect or the contractor or the builder who typically decides on that. But you actually brought that out as a more involving category for the consumer. And on top of that, you actually gone more technical by trying to burst the myths about wires don't catch fire. You've actually taken a low interest category and brought technical benefits of that out to make it interesting to the consumer. Yeah. So I'll both the question I reply. On this work from home, on this I written an article in moneycontrol.com, and see, this should be very successful, but the way it is happening, no, it will failure. So I'll give a simple example, like say Infosys or TCS or our office. So when people come, or Google or Facebook, any offices, when people come to the office,
the environment is created. See, what is IIT and IIM? People have become very successful worldwide. 90% in the world who are Indian successful are from either IIT or IIM. Because in IIT, IIM, maybe education must be other schools or college, smaller colleges must be much better. But then kind of environment which IIT and IIM created or these top companies have created is not possible the outside. Now, question is that this is successful. But now we need a towns, not the colonies, but towns work from home. So I am writing a second article on this. I am going to meet Prime Minister also. If India do very seriously, the 10 crore people and 100 million people can work from home, provided we have a towns. अरे इसमें 50,000 घर एक साथ में हो, 1 लाख घर एक साथ में हो, इसका अगर आप लॉन्ग टर्म एडवांटेज देखेंगे, सिटी से 25 किलोमीटर दूर होगा. उनको सिटी में आने की जरूरत नहीं है. इसके फायदे बताता हूँ. उनका ट्रेवलिंग टाइम बच जाएगा, वहीं पे स्कूल बनेगी, वहीं पे कॉलेज बनेगा, सब कुछ बनेगा. सिर्फ बेसिकली क्या होता है कि सोशलाइजिंग भी बहुत जरूरी है. लेकिन आज के जो घर हमारे हैं, उस 2 रूम किचन में या 1 रूम किचन में जहाँ स्टडी टेबल भी लगा ले सकते हैं, कंप्यूटर रख सकता हूँ, तो इट विल बी मोस्ट फेलियर एंड डिजास्टर. बट इफ वी चेंज द स्टाइल टोटली, अगर मैं ऐसे 50,000 गाँव के अगर 1,000 शहर बनाता हूँ, टाउन्स बनाते हैं सरकार, जैसे अपना दिल्ली से लेके जयपुर हाईवे पहले आफ्टर मानेसर अप टू जयपुर बॉर्डर तक आप बना सकते हैं, इंदौर के आसपास हो सकते हैं. गुजरात में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि गुजरात में ड्रिंक्स नहीं है, इट्स अ बैड पार्ट, तो लोग जाएंगे नहीं, फैक्ट है, जो सच्चाई है. तो लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह, बॉम्बे पूना के, बॉम्बे पूना इज वेरी एक्सपेंसिव, तो वी कैन हैव बिटवीन पूना टू कोल्हापुर, तो हर 20 किलोमीटर के बाद में कैसे शहर बन रहे. इसके एडवांटेज आपका उधर ही खेती होगी, उधर ही सब्जी आप उगाएंगे, तो इंडिया में पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा. पीपल विल गेट अ फ्रेश वेजिटेबल, एजुकेशन मिलेगा. अच्छा, बड़ी सिटी के प्रोक्सिमिटी इसलिए होना चाहिए कि हेल्थ केयर रिजनेबल हो जाएगा, लेकिन हेल्थ केयर के लिए आपको बड़ी सिटी के पास आना है. तो मैं बैंगलोर के डेवलपर्स को बात किया, हैदराबाद डेवलपर्स को बात किया कि आप बैंगलोर के आसपास 25, 30, 50 किलोमीटर दूर यू बाय 1,500 एकड़ लैंड. 1,500 एकड़ लैंड में 50,000 घर अच्छे से बनते हैं, 60,000 घर. सो व्हाट विल गिव अनदर एडवांटेज, आई टेल यू नाउ. दिस इज वन इज, इससे हम सब जो काम करते हैं हमारी कॉस्ट कम होगी, कंपनी हम परफॉर्मेंस ज्यादा करेंगे. अच्छा, इसमें एक ही कैटेगरी के लोग हो गए. अरे सारे के सारे 50,000 लोग जो काम करते हैं, दे नीड 3% पीपल टू सर्विस देम. तो 1,500 लोग आप समझिए दूसरे हो गए, या 5% सर्विस सेक्टर, 2.5 चलो, पर 47,500 लोगों की कम्युनिटी, सी कम्युनिटी बनना जरूरी है, आप समझिए आप उसको. तो सोशल फैब्रिक कब बनेगा कि कम्युनिटी एक जैसी होगी. तो वहां सब कौन करे, सब घर से काम करें, वो पढ़े लिखे हैं, उनकी बीवियां पढ़ी लिखी है, उनके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं. अगर इसको हम सही इंप्लीमेंट करते हैं तो इससे फिर दूसरा एक फायदा होगा. आज जो गाँव में हम एमएलए चुनते हैं, अब हम सब जानते हैं किस प्रकार के लोग चुन के आते हैं, दादागिरी पे आते हैं, पर अगर ये पढ़े लिखे लोग एक साथ में होंगे तो वी विल फाइंड अ गुड एमएलए ऑल्सो. तो इंडिया विल गेट, नॉट ओनली दिस विल क्रिएट 10 करोड़ लोगों का ह्यूमन बॉम्ब. मैं आपको बोलता हूँ, नॉट ओनली आईटी सेक्टर. सर हमारी कंपनी, हमने स्टडी किया है, हमारे 80 से 100 लोग वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे तो हमारी कंपनी सर्वाइव करती है. नॉट बिग कंपनी, वी आर नॉट सर्विस सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हमको आदमी चाहिए. तो ऐसे अगर करेंगे तो इंडिया विल बी, जैसे आज सर्विस सेक्टर में टॉप में, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वर्ल्ड में हम कैपिटल बन सकते हैं. कैपिटल, दिस विल चेंज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, दिस विल चेंज द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री. सी चैलेंज क्या है कि यू शुड बी, वी ऑल शुड बी वेरी हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली. सो इसमें आपका वो फायदा होगा. प्लस मेरे को ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है, पोल्यूशन बचेगा. उतना ऑयल इंपोर्ट कम करना है तो ऑयल का बजट कम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में. तो इसके सारे एडवांटेज, पर लेकिन ये अगर करेंगे तो होगा. अदरवाइज सी क्या होता है कि आत्मनिर्भर एक अनाउंसमेंट इज अ डिफरेंट, मेक इन इंडिया अनाउंसमेंट इज डिफरेंट, बट उसको रियल लाइफ में कैसे करना है, ये बिग चैलेंज है जिसकी सोच हमारे पास है नहीं. अगर इसको मैंने कई बिल्डरों से बात किया है, लेकिन वंस इज लॉकडाउन ओपन, सो आई टॉक टू नीति आयोग, आई टॉक टू प्राइम मिनिस्टर, आई टॉक टू एवरीवन, और मीडिया का इसमें सपोर्ट मिल जाएगा. तो मैं आपको बोल सकता हूँ दिस विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर इंडिया. एक ये है. दूसरा, जो लोग, एक और एडवांटेज मीन्स, 1 मिनट खाली लेता हूँ मैं, जो लोग वापस गांव गए उसमें 10% लोग वापस नहीं आएंगे, ये पक्का है. वो नहीं आना इस देश की इकोनॉमी के लिए वरदान होगा, क्योंकि हर कंपनी में 10% लोग वैसे भी एक्स्ट्रा है. लेकिन ये 10% लोग जो शहर से वापस गए हैं गाँव, तो शहर में रहने के कारण से उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप आई है, तो गाँव में जाके रूरल डेवलपमेंट होगा. इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ेगा. पूरे वर्ल्ड में स्टेपल फूड की डिमांड निकलेगी.
इंडिया के पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लाइक से अगर हल्दी फ्रॉम झारखंड, मैं आपको भिजवाता हूँ, आपका एड्रेस दे दीजिए। ऐसी हल्दी आपने जिंदगी में कोई खाई नहीं होगी, देखी नहीं होगी। कल मैं एक वो बॉडी शॉप का केस स्टडी कर रहा हूँ, उसके ऊपर कैसे इंडिया की नेचुरल चीजों को बना के उसको अगर मेक इन इंडिया, इंडिया के लोग ब्रांड क्रिएट किया जाए, दिस कैन बी अ वेरी बिग केस स्टडी। तो एक तरफ ये गाँव का रूरल डेवलपमेंट होगा, लेकिन वर्क फ्रॉम होम विल बी वेरी सक्सेसफुल प्रोवाइडेड दिस ऑल थिंग्स आर डन, अदरवाइज दिस विल बी द बिगेस्ट डिजास्टर। नंबर वन। नंबर टू, जो आप ये वायर की क्वालिटी की बात करें, B2B2 B2C, unfortunately we are not getting support from the government, and government is not very much focused, neither the people. See, हमारे सबकी तकलीफ क्या है, जो दिखता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो नहीं दिखता उसको ध्यान। Like in business, why business fails? Because our entire focus is on direct cost. Tell me how many people we focus on indirect cost? नहीं होता है। तो वैसे इसको इनडायरेक्ट जो लॉसेस है, आज वायर की क्वालिटी पे इतनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि अब एक नया रेंज आया है, BIS की मिस्टेक है, उसमें 7% बिजली ज्यादा लगती है, 7% इलेक्ट्रिसिटी इज मोर। BIS से फाइट कर रहा हूँ, मिलने की बात थी पर कोरोना हो गया, तो देयर लॉट ऑफ चैलेंज। जैसे मैं बोलता हूँ फार्मा के लिए क्वालिटी कड़क है, अगर एक मिनरल वाटर की बात करता हूँ मैं सर, 1% पीपल ड्रिंक मिनरल वाटर, दैट ऑल्सो ओकेजनली, उसके लिए आपके इतने कानून कायदे कड़क है। इलेक्ट्रिकल आइटम सर, मैं आपके घर में भी आता हूँ, अगर सेफ नहीं है तो मेरे को डेंजर है। आप मेरे घर पे आते हो, मैं मेरे खुद के घर ऑफिस को तो छोड़ के मैं किसी के भी जाता हूँ तो मेरे को सेफ्टी है। आज जैसे कोरोना में है ना, बोला मास्क लगाइए, सैनिटाइजर, हाथ धोइए, तो आजकल ये पूछना चाहिए कि वास्तव में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आपके घर में सही है कि नहीं, कल आग लग गई तो मेरा क्या होगा। तो दीज आर द चैलेंजेस। तो ये दोनों challenges है, पर एनी टाइम यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन फ्यूचर आल्सो, बिकॉज़ द टाइम इज रनिंग फॉर यू ऑल अस, बट ready, but opportunity for India is very high. Economy will be bounce back in 2021. There may be happen कि 10 से 15-20% कंपनी will fail. लोगों को 2020 खराब लग रहा है, मेरे को 2021 में 80% कंपनी will perform very well and 20% will collapse. आज की तारीख में खाली 10% कंपनी अच्छा काम करी, 90% बेच गई। There are few business are died. तो लेकिन इंडिया गॉट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, बट देन वी कैन बीट द वर्ल्ड एंड वी कैन इंप्रूव अवर इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉलेज, नॉट बाय पावर। फिजिकल पावर से नहीं होगा सर, ये नॉलेज की लड़ाई है, और नॉलेज से हमको पूरा दुनिया जीतना है, नॉलेज से इस देश के लोगों को आगे बढ़ाना है। नॉलेज एंड हेल्थ, ये दो चीज का अगर हम कॉम्बिनेशन, जैसे अपना इकोनॉमिकल और स्पिरिचुअल फैब्रिक बोलता हूँ, वैसे नॉलेज और हेल्थ का एक फैब्रिक अगर हम तैयार करेंगे तो आई थिंक सो विल बी द सुपर पावर। Wow, sir. Thank you so much for the vision. More power to you. Change the concept of town planning and smart cities, the way we've been going after it so far. And what you've said so far is fabulous, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Shailesh, over to you. Thanks, Abe. I'd like to call upon Ashish Chatterjee now. Ashish is Chief Financial Officer and Chief of Business for us. Ashish? Yeah, thank you, Shailesh. And it was so wonderful, Kabra ji. बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय ज्यादा नहीं चला चुका है, इसलिए मैं साल तो नहीं पूछूंगा, बस धन्यवाद करूंगा कि आपकी स्टोरी और कंप्लीट इंडियन स्टोरी जो 20 साल में 30 साल में लिखी गई है, वो एक खुद एक इंस्पिरेशन है। आपके थॉट्स एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर, बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। Thank you, Ashish. Again, I think a couple of questions I would take. I think probably that might interest some of the people. तो आप हो काबरा जी, तो हम आपका टाइम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एक्चुअली। एक क्वेश्चन, आई थिंक वन क्वेश्चन which Sunil is asking about, that's the RR Kabel actually. So Kabel obviously is the world of curiosity for most of us actually, that how did it develop, and obviously it's a brand to recon with now. But ये कहाँ से स्टार्ट हुआ and how actually it got developed? तो इसका ऐसा हुआ कि काबेल जो है, बेसिकली क्या था कि हमारा कोई इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं था। हम लोग वाइंडिंग वायर बनाते थे, केमिकल का बिजनेस था। वाइंडिंग वायर जो मोटर ट्रांसफॉर्मर लगता है, जिसमें हमको पूरे इंडिया में 1000 लोग भी नहीं जानते थे, मुश्किल से, बराबर है। तो लेकिन उसके लिए क्या करें, तो हमने इसको ब्रांड, और हमको जाना था एक्सपोर्ट्स में, दैट वाज सर्टेन, क्योंकि फैक्ट्री का इन्वेस्टमेंट भी, वी बॉट मशीन ऑल्सो। उस जमाने में EPC स्कीम होती थी, तो मशीन उसमें लिया था। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, ओवरसीज भी जाना है, लोकल भी जाना है। तो हमने उसको काबेल जो है, जर्मनी में केबल को काबेल बोलते हैं, बराबर है।
तो जब नया नया चालू किया, लोगों लगा कि हम लोग काबरा है तो काबरा इलेक्ट्रिकल का केएबी और ईएल किया है। यार जो मेरे मुसलमान दोस्त बोलते थे यार, बोले काबिल हो तो काबिल हो गया, राइट। पर फैक्ट इज दैट कि जर्मनी में इसको काबिल बोलते हैं, और हमारी सारी मशीन उस टाइम हमने यूरोप से ली थी और हमको पूरा एक्सपोर्ट में जाना था। दूसरा, हमने सोचा कि मैं इंडिया में अगर श्रीवास्तव जी के पास मेरा कार्ड देता हूँ तो क्या होगा कि आप मेरा तो वो आर काबिल देखते हुए कंफ्यूज होगा, तो आपको एक सवाल करेगा। और जीवन में जब आप मीटिंग में जाते हैं, मेरे कई सारे वीडियोस आप देख लेना, तो उसमें एक ही होता है कि अगर आपको किसी ने सवाल किया और आपको बोलने का मौका मिल गया तो आप समझिए कि आपकी जीत हो गई। और इम्प्रेशन क्या होता है कि पहले 3 मिनट में इन एनी मीटिंग, आप तो सभी काफी सीनियर है, मैं आप लोग की तरह सीनियर नहीं हूँ, लेकिन सीईओ साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन जीवन में हर मीटिंग के जो पहले 3 मिनट में अगर आपका इंप्रेशन सही हो जाता है, नॉट ओवर इंप्रेशन लाइक नॉट पीपल डू हैवी वैसा नहीं, पर रियल इंप्रेशन जो होता है ना, उसको अगर आप करते हैं तो पहले 3 मिनट में अगर आपकी मीटिंग अच्छी हो गई, आपकी बात, तो चांसेस ऑफ सक्सेस नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशन आपके बहुत हाई होते हैं कि आपके हो जाएंगे। और अगर पहले 3 मिनट में अगर आपकी बात नहीं मजेदार हुई तो चांसेस की 80% आपका नहीं होगा। तो इसके लिए हमने जो ब्रांड जो है आर काबिल रखा, एंड उस सोच ये थी, तो एक हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लोगों को एक समझ, बहुत क्वेश्चन चला, अभी हमने बहुत बाद में वापस चालू किया कि आर काबिल नीचे वॉइस एंड केबल किया, पहले करते नहीं थे, हम जान के नहीं किया आर काबिल वॉइस नॉट वरीज। तो सब एक सोचा मोचा, अरे बहुत चिंतन किया। वी वर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, जब हमने चालू किया हाउस वायर बिजनेस, तब इंडिया में 4% ऑर्गेनाइज सेक्टर था, 96% अनऑर्गेनाइज, 2 नंबर, चोरी, घटिया, वो सब माल था। Now that 4% has gone to 65% organized sector. So this is a change. तो ये चेंज हमने, तो जब अपना हेवल्स के मालिक किमर राय जी मेरे को मिले थे, तो मैं उनके गया मिलने, तो मेरे को बोले बैठो मत बेटा, मतलब क्या हो गया, मतलब गलती हो गई, क्या हो गया, कपड़े वपड़े देखे अपने आपके सही है, तेरे बरोबर है, तो बोले तुम खड़े हो। तो खुद अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने मेरे को सैल्यूट किया। तो बोला बाबू जी आप क्या बात, नहीं बोला बच्चा तू है ना एक वायर जैसी कैटेगरी को ब्रांड क्रिएट किया है, इसलिए मैं तेरे को सलाम करना चाहता हूँ, अब बैठ जा आराम से। तो दिस इज कि थॉट प्रोसेस चाहिए। क्या होता है कि जीवन में कुछ भी करने के लिए आपको एक सोच चाहिए, उस सोच में आप बहुत समय लगाइए बोलता हूँ, लेकिन उस सोच को, जैसे आपने बिग एफएम चालू किया या जो भी बिजनेस चालू करता है, उसके पहले एक थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या होता है कि जैसे इसने किया और मैं चालू करता हूँ, वो नहीं होके कि मैं लेकिन अपनी एक सोच बनाऊंगा, उस सोच के आधार पर आप चलेंगे। हमने प्लान किया पहले 5 साल तक हमारी कंपनी घाटे में चलेगी। दिस फैक्ट, बीइंग ए मारवाड़ी फैमिली, और हमारा इतना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, 27 करोड़ रुपया मशीन में लगाया था, लोन भी लिया था बैंक से, लेकिन दूसरे बैकअप थे हमारे पास। तो जो एक ऊपर वाली की दया है, कृपा, हमने जो 10 साल की बैलेंस शीट उस टाइम बनाई थी, हम में से कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब थे बाहर के, लेकिन 10 साल की बैलेंस शीट सेम टू सेम आई। 5वें साल हम प्रॉफिट में आए। और आप सोचिए कि हमने 100 आदमी रखे थे मार्केटिंग में, और हमारा पहले महीने का सेल 8 लाख रुपया था, वो भी मेरे अंकल को दे दिया जब थोड़ा करके। 12 महीने बाद हमें सेल आई 1.25 करोड़ रुपए की, 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 आदमी मार्केटिंग में, और मार्केटिंग का खर्चा कर रहा हूँ। तो शुरू से इसी क्या रहता है कि अब जब मैं ट्रेनिंग करता था तब की बताऊँ, 81 में मैं गया था कार लेके महाराष्ट्र में, 80,000 में उस टाइम मैंने गाड़ी में खर्चा किया था, एयर कंडीशनर और अपना म्यूजिक सिस्टम लगाया था, और गया और मैंने किसी भी एक कस्टमर से ऑर्डर नहीं लिया। अब सोचो, मैं जा रहा हूँ, घर से दूर जा रहा हूँ, खर्चा करके जा रहा हूँ, और बिजनेस, तो किसी से ऑर्डर, मैं बोला आप बॉम्बे आएंगे तो हमारे ऑफिस में आना, इतना ही किया मैंने। तो मार्केटिंग इज ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड। सी फोकस क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी दे डू बिगेस्ट मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर मीटिंग को आप जो, आपको इतनी ट्रेनिंग खराब है हम सब कंपनियों में कि रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग होनी चाहिए। मेरा एकदम उल्टा है, इट शुड बी रिलेशन ओरिएंटेड मीटिंग। रिजल्ट से रिलेशन नहीं आएगा। आप लोग लिख लीजिए, सब लोग, सीईओ साहब भी बैठे, सब बैठे, रिजल्ट से रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन रिलेशन से रिजल्ट जरूर आएगा। बिजनेस में होगा या रिलेशन में होगा, कहीं तो होगा। तो फर्स्ट ऑफ, दूसरा क्या है कि वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, इट हैज टू मेक इट बाय प्रोडक्ट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो मैं हमेशा सेल्स के लोगों को हमेशा देता हूँ कि जब कस्टमर के पास जाते हो, आपके यहाँ भी जो सेल्स टीम है उनके लिए खास बोलता हूँ, पहले कसम खा के जाओ, डील नहीं करनी है। आप इसका इफेक्ट देखना, देयर विल बी अ ट्रिमेंडस इफेक्ट। आपके माइंड का प्रेशर खत्म हो जाएगा। मूवमेंट आप ये सोचते हो कि आज शिशिर शर्मा को मिलना है, कुछ भी करो, बिग एफएम का डील तो क्लोज करना ही करना है,
शिशिर जी आपको दबाते रहेंगे, आप दबते रहोगे, आप कम करते जाओगे, और आखिर में क्या हुआ, डील तो हो गई, लेकिन ना उस डील में आपने पैसा तो कमाया, कम कमाया, ज्यादा कमाया, अंदर का गणित तो होता है, ये भाव में डील करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने रिस्पेक्ट खोया। हमारी कंपनी का पॉलिसी है, हम जो प्राइस देते हैं वी डोंट नेगोशिएट। और कस्टमर, हमारे खाली 2 आदमी एक्सपोर्ट में, हमारा 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, केस स्टडी इन द वर्ल्ड। 2000 प्रोडक्ट है, 1000 करोड़ एक्सपोर्ट है, केमिकल टू अर्थिंग एसेसरीज टू केबल, एक पैसे की उधारी नहीं है, और खाली 2 आदमी सेल्स में है। तो अगर पॉलिसी के साथ काम करेंगे, प्रिंसिपल बना लेंगे, तो कम आदमी में काम चल गया। तो देयर डिफरेंट वे। तो क्या है कि एक भगवान ने ईश्वरी शक्ति दिया। सर मेरा कुछ नहीं इसमें, जो कुछ है मेरे माँ पिताजी का आशीर्वाद है, भाइयों का, मेरी पत्नी मेरे साथ बिजनेस है, बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे लोग को भी कोई पैसे का मोहब्बत नहीं है, मेरी छोटी बेटी स्कूल टीचर है, बड़ी बेटी अब साइकिलिंग में चली गई। तो किसी को क्या हुआ, उन्होंने हमको देखा। सी द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोअर एंड बिलीवर, व्हाट वी डू ट्राई टू कन्वर्ट टू मेक पीपल फॉलोअर। फॉलोअर तो मजबूरी में होते हैं, नेता के भी होते हैं, गुंडे के भी होते हैं, बॉस के भी होते हैं, क्या करेगा, नौकरी करनी है, पगार बढ़ाना है, सब कुछ करना होता है। लेकिन उसके फॉलोअर के बदले हाउ कैन यू क्रिएट अ बिलीवर। बिलीवर बोलने से नहीं होता है, बिलीवर होता है कि आपके व्यवहार को देख के होता है, जो आपने देखा। अभी बताता हूँ, हमारे आर काबिल 2 टेक्निकल आदमी थे, बहुत सीनियर, कोई ना कोई कारण से कंपनी में होता है, इसकी उसकी नहीं जमी, एक एक करके दोनों गए, दोनों केबल कंपनी में गए। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूँ, उन्होंने हमारी कंपनी का एक भी सीक्रेट वहां पे नहीं दिया और वो काम नहीं किया। तो ये क्या किया हमने, एक कल्चर का निर्माण किया। सी हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिगर। हमने क्या किया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया फॉर कल्चर। कोई संस्कृति, एक देखिए कि लोग आएंगे जाएंगे, कंपनी आज आपकी है, कल कंपनी कोई खरीदेगा, मालिक बदली होगी, सब होगा, लेकिन कंपनी की असली ताकत जो होती है ना, आपका एक तो ब्रांड होता है, उससे कई ज्यादा आपकी कंपनी की जो विचारधारा होती है, संस्कृति होती है। आज भी कभी भी कोई उदाहरण हमको देना होता है तो 2 आदमी का मिलता है, या तो महात्मा गांधी का मिलता है या स्वामी विवेकानंद का मिलता है, दोनों नहीं है, 100 साल हो गए जाके, लेकिन उनकी विचारधारा हमारे में आज तक इतनी जबरदस्त लगी हुई है। तो ये आपका फोकस क्या है कि इसलिए हमने क्या किया, जो काबिल ब्रांड के साथ साथ, लेकिन नाम तो रखा ही रखा, लेकिन हमारी एक विचारधारा को इतना स्ट्रॉन्ग किया सर कि आपको वो विचारधारा ज्यादा काम कर रही है, न कि हमारा टीवी एड काम कर रहा है, कि न कि हमारी क्वालिटी काम कर रही है। लेकिन उसके सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे कम उम्र हमारी है, उसके बाद कंपनी की है, उससे ज्यादा उम्र अपने ब्रांड की है, और उससे कई ज्यादा उम्र हमारे विचारधारा की है। हम क्या करते हैं, पहले खुद के ऊपर सबसे ज्यादा गिनते हैं, फिर कंपनी को करते हैं, फिर ब्रांड को आते हैं, तो उल्टा चलता है। और इसको अगर आप ऊपर से चलेंगे तो जो होता है ना बिजनेस में, टॉप डाउन के मतलब बॉटम अप हो गया, तो और फोकस इज बॉटम अप, नॉट टॉप डाउन। थैंक यू सर। मुझे लगता है ये सेशन चलता भी रहे तो हर मिनट एक इनपुट आता रहेगा, लेकिन समय की बाध्यता है, तो मैं अब टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मौसमी। मौसमी इज माय कलीग, लुक्स आफ्टर म्यूजिक। मौसमी, ओवर टू यू। जस्ट एक हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है सर। मौसमी, ओवर टू यू। Thank you so much, Shailesh, and thank you so much, Sri Gopal ji and Shishir. What a session! What a fabulous session it has been. Thank you so much. इतना inspiring, especially जो आपने आत्मनिर्भरता and अपने आप be first का बताया is just amazing. So thank you so much for that. And जैसे आपकी कुछ स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ इज म्यूजिक, तो हम आपको एक म्यूजिक का छोटा सा गिफ्ट, एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट माय स्क्रीन, इफ यू डोंट माइंड, 1 मिनट। या प्लीज। थोड़ी सी मुझे लगता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी सी स्लो है आज। पहले रोड पे ट्रैफिक थी, अब डाटा में ट्रैफिक है। हाँ, ट्रू। इतने सारे लोग हैं तो ट्रैफिक तो है ही। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन अभी दिख रही होगी। नहीं दिख रही है। आगे। So we would like to say thank you and give you the gift of music. हम चाहते हैं कि आप और आपके आर काबिल की जो की टीम है, आपके फेवरेट गाने फ्रॉम द गोल्डन एराज ऑफ द 60s, 70s, 80s हमें डेडिकेट करें वॉइस नोट्स के साथ, मैसेजेस के साथ, एंड हम बिग एफएम मुंबई स्टेशन पे इन्हें प्ले करेंगे। आरजे रानी विल प्ले द डेडिकेशन 14 जुलाई ट्यूसडे को शाम 4 से 5 के बीच।
So we ठीक would है। love to have your dedications and your favorite music. Thank you. Thank you so much once Thank you very again, both Sri Gopal ji and Shishir. It's been a wonderful morning, wonderful session. Thanks, Shailesh. and Thanks, over to you. Mosme. Thanks, Mosme. Thanks, Mosme. Thank you, sir. Thanks for all doing this, and thanks Shishir and Tarun also to facilitate this and actually helping us out. Thanks Gujarat team, IT, NHR. Thank you very much. Thanks all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you.